Jai India students, I am your science teacher Dr. Preeti Mittal, and today we are going to study a very interesting and one of the most important topics from chemistry, that is writing the molecular formula. This is one of the most important topics from the chapter atoms and molecules, and this is not only important for exam point of view, ये आपकी chemistry में पूरी life में सबसे ज़्यादा important topic है, क्योंकि आज के बाद जब भी आप chemistry में कोई भी chemical के बारे में पढ़ोगे, किसी भी compound के बारे में पढ़ोगे, तो that would be given in the form of its formula only. आपको कोई भी sentences में, words में molecules के नाम, compounds के नाम नहीं लिखेंगे. So you should know the correct molecular formula. It's just as basic कि कोई भी स्टूडेंट जब प्री प्राइमरी से प्राइमरी क्लास में आता है तो उसे एक्सपेक्टेड होता है कि उसको ABCD आती है. So it's just like ABC of chemistry, that is so basic, and that is why it's very important to know how to write the molecular formula. So इसलिए बहुत ध्यान से सुनना. 9th में भी ये molecular formula बहुत important है, एग्जाम्स में आते हैं, पूछते हैं. और 10th में भी फर्स्ट चैप्टर में ही आपको बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस करना होता है. बैलेंसिंग करने के लिए सबसे पहले आपको आना चाहिए टू राइट द करेक्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए पे वेरी वेल अटेंशन. आज के इस वीडियो में हम पहले समझेंगे कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखते कैसे हैं, वैलेंसीज क्या होती हैं, कैसे हम उसको लर्न कर सकते हैं, और सिर्फ रटने की ज़रूरत नहीं है, हम वर्कआउट भी कर सकते हैं वैलेंसी ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स. फिर हम एक डिक्टेशन करेंगे जिसमें हम देखते हैं कि हमें कितना रिटेन रहा, कितने वैलेंसीज के बेसिस पे हम फॉर्मूला वर्कआउट कर पाए. So I hope you all are ready. Be ready with your pen and copy also so that you are able to work out the molecular formula with me. So let's start. Writing a molecular formula. Writing molecular formula से सबसे basic और सबसे first step होता है to know the valencies. आपको elements की, ions की, polyatomic and monoatomic ions की valencies पता होनी चाहिए. ये valencies आप जब practice करते हो molecular formula तो आपको धीरे धीरे याद होती चली जाती हैं. बट इनिशियली आपके लिए वैलेंसीज थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, इसलिए मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप किसी वैलेंसी को अगर भूल जाओ तो कैसे उसको आप खुद भी वर्कआउट कर सकते हो. सो विल डिस्कस ऑल दैट. Starting with what is valency. Valency is a number of electrons that could be either gained or lost or shared by an element. जितने भी इलेक्ट्रॉन्स कोई भी एलिमेंट या तो लूज कर सकता है या गेन कर सकता है या शेयर कर सकता है, that number of electrons is known as its valency. इसी को कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट भी कहते हैं, क्योंकि उतने इलेक्ट्रॉन्स वो शेयर करेगा, उतने ही बॉन्ड्स फॉर्म करेगा, उसकी उतनी ही कंबाइनिंग कैपेसिटी होगी. Okay, so it's better to say the number of electrons that could be gained, lost or shared by an atom, that is known as its valency. So वर्कआउट करते हैं सम ऑफ द वैलेंसीज. वैलेंसीज का एक पूरा चार्ट है, आई विल शो यू दैट. सो हियर यू कैन लुक at this chart. In this chart I have shown the valencies, और valencies को मैंने separately लिखा है. +1 hydrogen, sodium, potassium, these all are having +1 valency. Silver, gold, these are also having +1 valency. copper की valency भी +1 भी होती है, और आप देखोगे कि +2 के सेक्शन में भी है copper, because copper की valency +1 और +2 दोनों ही पॉसिबल हैं. That is known as variable valency. इसके अलावा आप you can see that +2 valency is there with calcium, magnesium, and some polyatomic ions are also there in this chart. So this chart is showing you the complete valencies of the elements that will be required for you all to work out any molecular formula. Okay, but अब इन valencies के पीछे का रीजन समझते हैं कि हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 क्यों है, सोडियम और पोटेशियम की वैलेंसी भी 1 है, तो वो 1 क्यों है, और अगर इन केस हम भूल जाएं तो क्या हम खुद वर्कआउट कर सकते हैं वैलेंसी को. So let's see that how can you work out the valencies and you need not even mug up the valencies. Okay, so for example, starting with hydrogen. Hydrogen occurs in two forms. Hydrogen की वैलेंसी +1 भी हो सकती है and it could be -1 also. -1 के फॉर्म में इसको हाइड्राइड आयन कहते हैं, and +1 होती है तो इसको हाइड्रोजन आयन कहते हैं. अब कैसे उसकी वैलेंसी +1 या -1 होगी, लेट्स सी टू दैट. हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1. इसके शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है. आपको पता है कि फर्स्ट शेल में हर एक एटम ट्राई करता है कि उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो या फिर एक भी ना हो. तो ये हाइड्रोजन भी ऐसा ही है. ये आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन नहीं चाहता, बट है इसके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन. सो इट इज पॉसिबल फॉर इट टू गेन 1 इलेक्ट्रॉन. अगर वो एक इलेक्ट्रॉन और गेन कर लेता है तो उसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रहेंगे 1, क्योंकि जो भी एटॉमिक नंबर होता है दैट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. तो उसके न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है जिसे कहते हैं प्रोटॉन. तो उसके पास एक प्रोटॉन हो गया और इलेक्ट्रॉन भी कितना है, एक. पर अगर उसने एक और इलेक्ट्रॉन ले लिया तो अब उसके पास माइनस चार्ज आ गया 2.
तो 1 प्रोटॉन की वजह से 1 पॉजिटिव चार्ज था, एक इलेक्ट्रॉन और ले लिया, 2 इलेक्ट्रॉन्स उसके पास हो गए और उसका अब चार्ज हो जाएगा -1। अगर उसका चार्ज -1 है तो उसे हाइड्राइड आयन कहते हैं। वी कॉल इट एज हाइड्राइड आयन। ओके, नेक्स्ट इज +1 वैलेंसी। हाइड्रोजन की वैलेंसी +1 भी हो सकती है। तो ये हाइड्रोजन के पास जो एक इलेक्ट्रॉन है, इट्स पॉसिबल फॉर हाइड्रोजन टू ईदर शेयर दिस इलेक्ट्रॉन और टू डोनेट दिस इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन वो लूज भी कर सकता है या किसी के साथ शेयर भी कर सकता है, इसलिए उसकी वैलेंसी +1 भी है। सो इट इज पॉसिबल ओनली फॉर हाइड्रोजन। जस्ट एक सिंगल एटम है पूरी पीरियोडिक टेबल में, सिंगल एक ऐसा एलिमेंट है जो कि ईदर इट कैन हैव वैलेंसी एज +1 और -1 बोथ। अदरवाइज किसी भी एटम की वैलेंसी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नहीं होती। हाइड्रोजन इज द ओनली वन, इट्स अ वेरी स्पेशल वन। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, सो यू जस्ट नीड टू रिमेंबर द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट्स। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। 11 मीन्स इसका जो एटम बनेगा उसके न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन्स हैं और इसके पास शेल्स में है 11 इलेक्ट्रॉन्स। सो लेट्स सी कि ये इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से अरेंज हैं। सबसे इनर मोस्ट शेल कैन हैव अ मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स ओनली। तो सबसे इनर मोस्ट शेल के पास इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ओके, सो दिस 11 could be written as 2 electrons in the innermost shell. Second shell can have maximum of 8 electrons. तो second shell में 8 electrons present होंगे। 2 plus 8 10, अब बचा 1 electron. So that would be there in the next shell, that is the last shell. एक बात याद रखना बच्चों, every element tries to have 8 electrons in its outermost shell. उसको कहते हैं octet. तो हर एलिमेंट ट्राई करता है कि उसके आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो, ना तो 8 से ज्यादा ना 8 से कम। सो उस ट्राई करने में अब सोडियम कैसे कर सकता है कि इसके आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो। फॉर दैट पर्पस ये इलेक्ट्रॉन को जो आउटरमोस्ट शेल में है उसको लूज कर सकता है। तो सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करने की कोशिश करेगा, किसी को डोनेट कर देगा। और ऐसा एलिमेंट जो किसी को डोनेट कर देगा तो इसके पास अब पॉजिटिव चार्ज कितना रह जाएगा, वही 11 प्रोटॉन्स दैट आर देयर इन द न्यूक्लियस, अभी भी वो हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स केवल 10 रह गए, 2 + 8 = 10, तो इलेक्ट्रॉन्स हो गए 10 और इसलिए इसके पास हो गया +1 चार्ज और इसलिए सोडियम की वैलेंसी होती है +1। ओके, तो ये वैलेंसीज आप कभी भी वर्कआउट कर सकते हो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जब आप बहुत सारे मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज वर्कआउट करते हो तो आपको ये वैलेंसीज याद हो जाती हैं, फिर आपको ये वर्कआउट करने की जरूरत नहीं होती। बट इन केस यू आर अ बिगिनर, यू आर ट्राइंग विद दैट और अभी आपको वैलेंसीज लर्न नहीं है, तो आपको एग्जाम्स में भी आप क्विकली वर्कआउट करके देख सकते हो कि 11 एटॉमिक नंबर है, 2 8, लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन बचा जिसको वो लूज कर देगा, इसलिए इसकी वैलेंसी हो जाएगी +1। ओके, इट वुड बी वेरी वेरी सिंपल। ठीक है, अब जल्दी से वर्कआउट करते हैं वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम का भी एटॉमिक नंबर आपको याद है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12। इसके इलेक्ट्रॉन्स को क्विकली अरेंज करते हैं। इसके इनर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड शेल कैन हैव अ मैक्सिमम ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स, बचे 2 इलेक्ट्रॉन्स दैट वुड बी देयर इन द लास्ट शेल। बट लास्ट शेल तो चाहता है कि उसके पास हो सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन्स, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स वो नहीं चाहता। सो मैग्नीशियम वुड बी डोनेटिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। जितने इलेक्ट्रॉन बाहर भेज दोगे उतना ही पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इसलिए मैग्नीशियम की वैलेंसी भी हो जाएगी +2। ओके, तो मैग्नीशियम की वैलेंसी भी है +2। नाउ लेट्स वर्क आउट द वैलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13। इलेक्ट्रॉन्स को क्विकली अरेंज करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स इन इनरमोस्ट शेल, सेकंड शेल 8 इलेक्ट्रॉन्स, थर्ड शेल में बच जाएंगे 3 इलेक्ट्रॉन्स। चाहता है कि 8 इलेक्ट्रॉन्स हो आउटरमोस्ट शेल में, इसलिए वो 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देगा एंड सो द वैलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम वुड बी +3। ओके, एल्यूमिनियम की वैलेंसी हो जाएगी +3 बिकॉज इट विल ट्राई टू डोनेट दीज 3 इलेक्ट्रॉन्स टू एनी अदर एलिमेंट। ओके, तो अभी डोनेशन ले कौन रहा है इनसे वो भी देखते हैं। सपोज वी टॉक अबाउट क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। इसका भी इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करते हैं, तो द फर्स्ट शेल विल बी हैविंग अ मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड शेल 8 इलेक्ट्रॉन्स, अब बचे हुए 7 इलेक्ट्रॉन्स दैट वुड बी देयर इन द थर्ड शेल। बट ये थर्ड शेल तो 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहता है, इसके पास है 7। तो अब क्या करेगा, वो जो डोनेट कर रहे थे एलिमेंट्स लाइक मैग्नीशियम, सोडियम, उनसे ये रिसीव करेगा। तो ये सोडियम से रिसीव कर सकता है एक इलेक्ट्रॉन और बनाएगा NaCl, जिसे हम कहते हैं कॉमन सॉल्ट, खाने का नमक जो हम घर पे यूज करते हैं, इसी तरह से फॉर्म होता है। तो ये सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन अगर ले लेगा तो इसके पास भी हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल। तो ऐसे एलिमेंट्स
जो कि इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे हैं, क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज को गेन कर रहे हैं इसलिए उसके ऊपर चार्ज भी आ जाएगा माइनस। कितने इलेक्ट्रॉन्स को उसने गेन किया? एक को, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी, तो इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा -1। सो क्लोरीन वुड बी हैविंग अ चार्ज ऑफ -1। क्लोरीन की वैलेंसी है -1। नेक्स्ट, नाउ लेट्स वर्क आउट द वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8। इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करते हैं। फर्स्ट शेल 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड शेल में बचे हुए 6 इलेक्ट्रॉन्स। इसके आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, बट ये चाहता कितने हैं? इट वांट्स टू हैव एटलीस्ट 2 मोर इलेक्ट्रॉन्स, ताकि इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, इसके भी आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए। एंड फॉर दैट पर्पस इट विल ट्राई टू गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि नेगेटिव गेन कर रहा है तो इसके ऊपर चार्ज भी आ जाएगा -2। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी हो जाएगी 2 एंड दैट विल बी गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। बट वैलेंसी की डेफिनेशन में तो हमने कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकता है, लूज कर सकता है या शेयर भी कर सकता है। अब देखते हैं ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है। बात करते हैं कार्बन के बारे में। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 और इसके इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम अरेंज करें तो इनरमोस्ट शेल विल बी हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड द आउटरमोस्ट शेल वुड बी हैविंग 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसके आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसको कंप्लीट करना है अपना ऑक्टेट, या तो उसके लिए दो तरीके हो सकते हैं। वन वे कुड बी कि ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को और गेन कर ले, पर इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स गेन करना पॉसिबल नहीं होता। मैक्सिमम कोई भी एलिमेंट 3 इलेक्ट्रॉन्स तक ही गेन कर सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने के लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चाहिए होता है। तो प्रोटॉन्स 6 प्रोटॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स को नहीं संभाल पाएंगे और इतना इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन फोर्स भी नहीं मिलेगा, तो इसलिए वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन नहीं कर सकता। सेकेंड तरीका हो सकता है इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को भी रिमूव आउट कर दो, क्योंकि फर्स्ट शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी होती है 2, तो फर्स्ट शेल इज गुड विद 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर ये 4 हट जाते हैं देन ऑल्सो इट इज गुड, क्योंकि अब इसके पास आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे। दैट इज अ स्टेबल सिचुएशन। पर 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना भी पॉसिबल नहीं होता। 1, 2 या मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन्स तक लूज कर सकता है कोई भी एलिमेंट। 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज करना इट्स नॉट पॉसिबल। बाकी बचे हुए प्रोटॉन्स बहुत स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने लग जाएंगे कि ये एक एक करके इलेक्ट्रॉन्स जा कहाँ रहे हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स को ना तो गेन कर सकता है कार्बन, ना लूज कर सकता है। तो फिर कार्बन क्या करे? देन कार्बन विल बी शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स। जैसे आप देखते हो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल बनता है, तो कार्बन और ऑक्सीजन आपस में इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं। तो कार्बन की वैलेंसी होती है 4, क्योंकि ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर सकता है। कार्बन कैन शेयर 4 इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए कार्बन की वैलेंसी हो जाएगी 4। सिमिलरली लेट्स सी इट फॉर सिलिकॉन। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14। इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करते हैं। फर्स्ट शेल 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड 8, बचे हुए 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। मैंने आपको बताया कोई भी एलिमेंट 4 इलेक्ट्रॉन्स को ना तो गेन कर सकता है ना ही लूज कर सकता है, तो फिर सिलिकॉन क्या करेगा? इट विल शेयर द इलेक्ट्रॉन्स, और 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करने वाला है इसलिए इसकी वैलेंसी भी होगी 4। तो कार्बन एंड सिलिकॉन बोथ हैव अ वैलेंसी ऑफ 4। कुछ पॉलीएटॉमिक आयंस की भी वैलेंसीज को समझ लेते हैं कि कैसे वर्कआउट करा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं अमोनियम आयन। अमोनियम आयन इज हैविंग अ वैलेंसी ऑफ +1। देखते हैं इस पॉलीएटॉमिक आयन की वैलेंसी 1 क्यों है। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का बात करें अगर, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। इसके इनर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसलिए इसकी वैलेंसी होगी 3। ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की कोशिश करता है और इसी गेनिंग की कंडीशन में वो हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड फॉर्म करता है। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो इसलिए 3 हाइड्रोजन एटम से रिएक्ट करके ये एक मॉलिक्यूल बनाता है, दैट इज अमोनिया। अमोनिया एक कंपाउंड है और एक स्टेबल कंपाउंड है, बट इस कंपाउंड में ही एक और हाइड्रोजन एटम आ जाए तो वो हाइड्रोजन एटम अपने साथ +1 चार्ज लेकर आएगा और इसलिए ये फॉर्म करेगा NH3 के साथ में एक और H ऐड हो गया एंड दैट विल फॉर्म NH4 एंड दैट वुड बी हैविंग अ चार्ज ऑफ +1। एक और पॉलीएटॉमिक आयन की वैलेंसी वर्कआउट करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल कार्बोनेट आयन। कार्बोनेट आयन की वैलेंसी होती है -2। ये -2 क्यों है देखते हैं। कार्बन की वैलेंसी आपको पता है 4 थी, ओके। ऑक्सीजन की वैलेंसी थी -2, पर -2 वाले कितने एटम्स हैं? 3, तो -2 into 3 दैट विल बिकम अ टोटल ऑफ -6। और कार्बन की वैलेंसी 4, कार्बन की वैलेंसी 4 और ऑक्सीजन जो इसमें है उसकी वैलेंसी -6, तो दोनों को अगर आप वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो +4 एंड -6 विल गिव यू -2 और इसलिए कार्बोनेट आयन की वैलेंसी हो जाती है -2। So this was the way how you can work out the valencies of different ions. It could be monoatomic ions also or
polyatomic ions. अगर आपको valencies find out करना बहुत अच्छे से आ गया है तो that is very good for you all. Otherwise you can always remember the valencies. I'm once again showing this valency chart. You can take a screenshot of it. It's very important for you all. तो ये valencies को अभी आप cheating के लिए use कर सकते हो और let's find out the molecular formulas. Let's work out the molecular formulas of some of the compounds. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखने के लिए हम क्रिस क्रॉस मेथड समझेंगे कि कैसे ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर्म होता है, जिसके लिए हमें यूज होएगी उनकी वैलेंसीज. फॉर एग्जांपल हमें मान लो लिखना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड. तो सोडियम क्लोराइड, सोडियम की वैलेंसी +1, क्लोरीन की वैलेंसी -1. अब जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखते हैं तो क्रिस क्रॉस मेथड फॉलो करते हैं, मतलब सोडियम के नीचे क्लोरीन की वैलेंसी और क्लोरीन के नीचे सोडियम की वैलेंसी. तो सोडियम के नीचे क्लोरीन की वैलेंसी 1 है, 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती. क्लोरीन के नीचे सोडियम की वैलेंसी दैट इज आल्सो 1, सो वी नीड नॉट राइट दैट एंड हमारा फॉर्मूला बन जाता है NaCl. नाउ लेट्स राइट द फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. मैग्नीशियम की वैलेंसी +2 हमने वर्कआउट करके देखी थी. हाइड्रोक्साइड आयन एक पॉलीएटॉमिक आयन है, इसकी वैलेंसी होती है -1. सो कैसे वर्कआउट कर सकते हो आप -1? एक बार वापस देखें कि हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि -1 क्यों है. ऑक्सीजन की इंडिविजुअली वैलेंसी थी -2, हाइड्रोजन वाज +1, -2 + 1 विल बिकम -1 और इसलिए हाइड्रोक्साइड आयन की वैलेंसी है -1. ओके, तो चलो अब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को लिखते हैं. कैसे फॉर्मूला लिखेंगे? वही क्रिस क्रॉस मेथड. मैग्नीशियम के नीचे हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी 1 है, इसलिए वी नीड नॉट राइट दैट. Then comes OH. अब बच्चों बस यहीं पर बात याद रखने वाली है, आप OH के नीचे ऐसे 2 नहीं लिख सकते. इट्स रॉन्ग. व्हाई इट्स रॉन्ग? क्योंकि हाइड्रोक्साइड पूरा एक पॉलीएटॉमिक आयन है, पूरे आयन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसलिए आपको लिखना होगा होल ट्वाइस. ये ब्रैकेट ट्वाइस बता रहा है कि अब ऑक्सीजन के भी 2 एटम है और हाइड्रोजन के भी 2 एटम है. सो इट्स अ पॉलीएटॉमिक आयन, वी हैव टू राइट होल ट्वाइस. फाइन. नाउ लेट्स राइट द फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड. ओके, एल्यूमिनियम ऑक्साइड. एल्यूमिनियम का वैलेंसी होती है +3, ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है -2. सो लेट्स राइट डाउन द फॉर्मूला. एल्यूमिनियम के नीचे ऑक्सीजन की वैलेंसी एंड ऑक्सीजन के नीचे एल्यूमिनियम की वैलेंसी. तो फॉर्मूला बन जाता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का Al2O3. दैट इज द फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड. एक बात और याद रखना बच्चों, जब भी हम कोई भी फॉर्मूला लिखते हैं हमेशा पहले पॉजिटिव चार्ज लिखते हैं, मतलब एल्यूमिनियम वाज हैविंग पॉजिटिव वैलेंसी, उसको पहले लिखेंगे और वो एलिमेंट जिसकी नेगेटिव वैलेंसी है वो हमेशा बाद में लिखा जाता है. सो ऑलवेज फर्स्ट वी राइट द कैटायन एंड देन द एनायन. नाउ लेट्स वर्क आउट द फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. कैल्शियम वैलेंसी इज +2, कार्बोनेट आयन इज हैविंग वैलेंसी ऑफ -2. अब यहाँ पर हमें ध्यान रखना है, किसी भी अगर कॉमन नंबर से दोनों ही डिजिट्स डिवाइड हो सके तो हम इसे डिवाइड कर सकते हैं. तो ये दोनों ही डिजिट्स 2 से डिवाइड हो जाएंगे, तो ये रह जाएगा +1 एंड दिस विल बिकम -1 और इसलिए कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्मूले में वी विल बी राइटिंग Ca -1 एंड कार्बोनेट दैट इज +1. 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती, इसलिए हम लिख देते हैं डायरेक्टली कैल्शियम कार्बोनेट एज CaCO3. Let's work out the formula of a very known compound that is carbon dioxide. जिसका फॉर्मूला हमें बहुत अच्छे से पता है, पर देखते हैं वैलेंसी के बेसिस पे भी वो फॉर्मूला आ जाएगा क्या. So let's see to that. Carbon was having valency 4, ऑक्सीजन की वैलेंसी थी -2. अब जब कोई इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से बनाता है बॉन्ड तो उसमें +4 -4 लिखते नहीं है, बट उसको पॉजिटिव ही माना जाता है. ओके, सो अब इसको किसी कॉमन नंबर से हम डिवाइड कर सकते हैं क्या? यस, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 रह जाएगा और ये -1 रह जाएगा. अब क्रिस क्रॉस मेथड में डिवीजन के बाद जो वैल्यूज आई हैं उसको यूज करेंगे और इसलिए कार्बन के नीचे 1 और ऑक्सीजन के नीचे 2 बच जाएगा एंड दैट इज हाउ वी गेट द फॉर्मूला कार्बन डाइऑक्साइड एज CO2. So by that you have seen how you can work out the molecular formula. अब देखते हैं कितने अच्छे से ये समझ में आया आपको by checking it out with one dictation. Okay, so here I have added a video of a dictation. You have to give a dictation. Work out in your rough copy. You can take the help of the valency chart. Valency chart की help से आप work out करो ये formulas को और tell me the score that you get. Okay, work out the molecular formula and I would be really glad to know what was your score.
तो आप इन फॉर्मूलाज को वर्कआउट करो, चेक करो कि आप कितने खुद सही कर पाते हो, एंड एट द end of that dictation I will tell you the correct formula of all the compounds. So here we go with the dictation. I'm calling out the names. Pause after every name. Just write it by your own and then restart the video. Okay. First is barium chloride. Second, aluminium sulfate. Third, aluminium chloride. Fourth, barium sulfate. Fifth is sodium hydroxide. Sixth, hydrogen chloride. Seventh is nitric acid. Okay, it might be new for you if you are in 9th standard. I'll let you know what is nitric acid. Nitric acid, it's very important, so you should know. Next is hydrogen sulfate. In bracket write sulfuric acid. Hydrogen sulfate, its common name is sulfuric acid. Next is ammonia. 9th is ammonia. 10th is hydrogen sulfide. Hydrogen sulfide. Earlier it was 8th was hydrogen sulfate. 10th is hydrogen sulfide. Sulfate and sulfide are different, okay? Next is sodium sulfate. 12th is sodium nitrate. 13th one is calcium carbonate. 14, zinc sulfate. 15, copper chloride. 16, potassium iodide. 17, potassium sulfate. 18, barium iodide. 19, calcium hydroxide. 20, ferrous sulfate. Wherever the valency of iron is 2, it's written as ferrous. I told you, iron has variable valency +2 and +3. So wherever it's +2, it's written as ferrous. And wherever it's +3, it's written as ferric. Okay. So +2 is ferrous and +3 is ferric. Write it down. 21, lead oxide. 22, silver chloride. 23, lead nitrate. 24, carbon chloride. Actually, it's called carbon tetrachloride. Okay. Carbon chloride. 25, magnesium chloride. 26, aluminium oxide. 27, calcium oxide. Calcium oxide's common name is quicklime. 28, ammonium sulfate. 29 is sodium oxide. And 30 is copper nitrate. Okay. So I hope you all have written these formula. So first was barium chloride. Quickly I'll be writing it. Barium chloride is BaCl2 because barium has a valency 2 and chloride valency is 1. So chloride ki valency barium ke niche and barium ki valency chloride ke niche. Then second is aluminium sulfate. Third is aluminium chloride. Aluminium ki valency 3, chloride ki valency 1. So it will be under aluminium. Fourth is barium sulfate. Both have a valency of 2. So that will be cancelled with each other. Sodium hydroxide. You only need to remember that OH is hydroxide ion. Sodium hydroxide is there. Both have valency both have valency 1. Next is hydrogen chloride. It's the same R. Hydrogen chloride, that is the acid present in stomach also. Next is nitric acid. Nitric acid, you should remember, it's HNO3. Nitric acid, the name doesn't suggest what is it. So you should remember it's HNO3. Then we have sulfuric acid or hydrogen sulfate, that is H2SO4. Sulfate ki valency 2, hydrogen ki valency 1. Ninth is ammonia. Ammonia you should remember, it's NH3. You should have to learn it that ammonia is nitrogen hydrate nahi bolte isko. So it's NH3. Nitrogen and hydrogen are there. Nitrogen ki valency I told you it's 3, hydrogen ki valency 1. So by the same crisscross method you can work it out. Next is hydrogen sulfide. Hydrogen sulfide. Now here it was hydrogen sulfate
and it's here hydrogen sulfide. So remember, we have written the valency of sulfide and sulfate both. Then 11th one is sodium sulfate. 12th is sodium nitrate. 13th is calcium carbonate. Carbonate has valency 2, calcium also has a valency 2. So both will be cancelled out and we just write it CaCO3. Now we have zinc sulfate. Then we have copper chloride. Here the valency of copper is 2. In such questions, we commonly write as copper chloride as CuCl2. But you might be given that copper 2 chloride. Sometimes with compounds of iron and copper, they just given the bracket in Roman numbers that it's copper 2 chloride. It's written like this. That represents the valency of copper here is 2. But even if 9th standard students have made a mistake in this, then it's fine. But for 10th standard students, I hope you are acquainted with that this copper chloride is CuCl2. Now, next is potassium iodide. Then we have potassium sulfate. 17th was potassium sulfate. So sulfate valency is 2 and potassium's valency is 1. Then we have barium iodide. Then we have calcium hydroxide. Then we have ferrous sulfate. Ferrous, I told you it's plus 2. Wherever ferrous word is there, it's plus 2. And sulfate is minus 2. So both cancel out each other. Next is lead oxide. Lead plus 2, oxygen minus 2. Next is silver chloride. Next is lead nitrate. Lead is having a valency 2, so it's written below nitrate. And nitrate has a valency 1, so it's written under lead. So 1 need not be written. Okay. Then comes carbon tetrachloride or carbon chloride. Whatever it's written, but you know that carbon has a valency 4 and carbon has a valency, chloride has valency 1. Okay. Then 25th is magnesium chloride. Then aluminium oxide. Then calcium oxide, it's also known as quicklime. So calcium plus 2, oxygen is minus 2. So balance each other. Here aluminium oxide or aluminium has a valency of 3, which is written under oxygen. And oxygen has a valency of 2, which is written under aluminium. Then we have ammonium sulfate. Ammonium has a valency of 1 and sulfate has a valency of 2. So sulfate की valency ammonium के नीचे and ammonium की valency 1 है. So you need not write it under sulfate, ammonium sulfate. Then comes sodium oxide. And the last one is copper nitrate. Copper nitrate. Okay. So just work out all these and I would really be waiting to see your scores. So post your scores in the comment section. I would be happy to see whatever is your score. Don't hesitate about it. I'll just shift to side and you can take a screenshot of the same. So I hope you were able to work out that formulas. You were able to find out the correct molecular formula. इस molecular formula के dictation में I have included all the molecular formula that would required in 9th और in 10th standard. 9th 10th दोनों ही classes में पूरी book में आपको जितने भी molecular formulas काम में आने वाले हैं वो सारे include कर दिए हैं. तो अगर आपने इन molecular formulas की अच्छे से practice कर ली तो ना सिर्फ 9th में आपके लिए helpful रहेगा, that would be helpful for you in 10th standard also. इसके बाहर आपके कोई भी molecular formula नहीं जाएंगे. इतना workout कर लिया तो आप अपने आप सारी workout कर पाओगे. Okay, so I hope you were able to work out the formulas and I would like to know your scores as well. Do let me know about your scores in the comment section. If you like the content, if you like the explanation, do share it with your friends also and subscribe to my channel if you haven't already. That's all for today. Good day, everyone.